अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। اليوم يوم الثلاث 19 ذی الحجہ 1443 ہجری۔ آج منگل کا دن ہے، جولائی کی 19 تاریخ 2022۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ انفال آیت نمبر 61 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جھک جائیں، لِلسَّلْمِ، صلح کے خاطر، فَجْنَحْ لَهَا، تو صلح کر لو اس، یعنی تم بھی جو سو جھک جاؤ اس کی طرف، صلح کی طرف۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کرو اللہ پر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اب یہاں پر ون سیکنڈ جو سو جنگ کے حالات میں، جنگ کے وقت میں جو کچھ کرنے کے احکامات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر دشمن تم سے صلح کرنے کے لیے راغب ہو جائے، مائل ہو جائے، تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر جو ہم پچھلی آیت جو پڑھے تھے پچھلی کلاس میں، اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیں۔ اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، مومنوں سے کہا تھا کہ تم اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق طاقت کے سارے وسائل کو اختیار کر کے رکھو، گھوڑوں کو تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے تم جو سو اللہ کے اور تمہارے دشمنوں کے اوپر دھاک بچا سکو، اور ان کے اوپر بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پچھلی کلاس میں مجھ کو آخر میں جو اس آیت کی جو اختتام کی جو حصہ تھا، اس کے بارے میں بہرحال وقت نہیں ملا اور مجھ سے شاید ذہن سے بھی نکل گیا۔ اس کی جو تھوڑی سی بات اس پر ڈسکشن کرنا تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا تم کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ یعنی جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اوپر کہ تم اپنے طاقت کے جو وسائل ہے، جو کچھ ہے سب تیار کر کے رکھو۔ یعنی جو ہتھیار ہے اور جو اپنے جسم کو بنا کے رکھنا، اپنے ہتھیار کو تیار رکھنا، گھوڑوں کو تیار رکھنا۔ تو آج کے زمانے میں جو آرمز اینڈ ایمونیشن ہوتے ہیں، جو بہت مہنگے وسائل بھی ہوتے ہیں، ان وسائل کو پوروں کو جو کچھ تم کو خرچ پڑتا ہے، جو کچھ تم کو اس کو طاقت جمع کرنے کے لیے ضرورت ہوگا، تو یاد رکھو یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا کیا کہتے ہیں کہ غیرت والا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب تم کو دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کچھ اپنے اوپر واپس نہیں رکھ لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے خاطر اور اس دین کے سربلندی کے خاطر جو کچھ تم وسائل کو اختیار کرو گے، جو کچھ تم وسائل خرچ کرو گے، مال و دولت کو خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور وہ پورا پورا بدلہ کیسا ہوگا؟ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں تو یقینی ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کبھی نظر آ جائے، کبھی نہ نظر آئے، لیکن اگر دنیا میں نظر آئے نہ آئے، آخرت میں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ صرف جنگ کے بارے میں نہیں، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، صدقہ خیرات ہو، کسی غریب کی مدد کرنی ہو، یا اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہو، جو کچھ اللہ کے رضا کے خاطر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ اور پورا پورا بدلہ کیسا دیتا؟ ایک کے برابر ایک نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں آپ جو خرچ کرتے ہیں اس کی بھی اللہ نے قرآن میں مثال بیان کی کہ جیسے کہ وہ ایک دانہ، اگر جیسے کہ جو کیا کہتے ہیں کسان جو ہوتا ہے، جو ہل چلاتے ہیں، اور جو فارمر جو ہوتا ہے، وہ زمین میں ایک دانہ اناج کا ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہترین مثال بیان کر دیا۔ اس کے ذریعے سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس پودے کے اندر 100 بالیاں ہیں، اور 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں جو 100 دانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا تو اس کسان کو جو 700 دانے نکل آتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلکہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نوازتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا جو 700 گنا یعنی 700 روپے کے برابر اجر دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ انسان کی اخلاص ہوگا، اور جو معاملے میں خرچ کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ تو جو کچھ تم اللہ کے دین کے خاطر،
अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के खातिर माल और दौलत जो कुछ खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा तुमको बदला देगा। ये पिछली आयत के बारे में था। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो जो सो कुफ्फार जो सो तुम्हारे साथ सुलह कर लेना चाहते हैं, तुम्हारे साथ जो सो ट्रीटी करना चाहते हैं, अमन अमान का माहिदा करना चाहते हैं, तो तुम भी उनके साथ अमन अमान का माहिदा कर लो। और याद रखो अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, और यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला। तो मतलब क्या है? और देखें, जहाँ पर आज वन सेकंड जो नॉन मुस्लिम्स हमको ये कहते हैं कि इस्लाम जो सो हर तलवार के जोर पर फैला, और मुसलमान जो सो हमेशा तलवार के नोक पर बात करते हैं, खूनरेजी की बात करते हैं, मारने की काटने की बात करते हैं, ये सरासर झूठ है। हर जगह पर अल्लाह ताला ने जो सो कहा है कि सुलह बेहतर है। अगर नहीं, जब कभी भी दो मामले हो कि लड़ाई लड़नी है या सुलह करनी है, तो कहा कि सुलह बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि सुलह बेहतर है। और आपने ये कहा कि दुश्मन से कभी भी जो सो मुठभेड़ की और कामना सामने की तमन्ना मत करो, ख्वाहिश मत करो, लेकिन जब उसका यानी नागुज़ीर हो जाए और आमना सामना हो जाए तो फिर पीठ मत फेरो। तो ये है इस्लाम का तरीका, ये है इस्लाम का जो सो हुक्म कि अगर ठीक है, इस्लाम के खातिर, दीन के खातिर, हक को कायम करने की खातिर अगर जंग करने की जरूरत पड़े तो जंग करो, लेकिन फिर भी जो सो सुलह बेहतर है। अगर सुलह करना चाहता है सामने वाला दुश्मन, जो सो तुम्हारे साथ सुलह करना चाहता है, तो सुलह के लिए आगे बढ़ जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह ताला यकीनन सुनने वाला और जानने वाला है। तो जो ये हमको प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस्लाम जो सो हमेशा जो सो बारबारिक है और क्या कहते हैं कि लोगों को लड़ने और काटने की दावत देता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ यकीनन देता है। और दुनिया की हर मज़ाहिब में जो सो ये चीज़ है, और दुनिया के कानूनों में, हर गवर्नमेंट के और हुकूमतों के कानूनों में भी यही होता है कि क्या कहते हैं कि मुल्क की और अपने जो वतन की हिफाजत करनी हो तो वहां पर लड़ना पड़े तो जान भी देना पड़ेगा, जान देनी पड़ेगी। उसी तरीके से जुल्म और ज्यादती को खत्म करना है तो वहां पर भी जो सो जान देने के लिए और जान लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो उन हालत में ही इस्लाम भी जो सो इजाजत देता है। वइन युरीदु, और अगर वो चाहें, अन यकात अन यखदऊ का, कि वो आपके साथ धोखा करे, फ इन्ना हस्बकल्लाहु, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह काफी है। हुवल्लज़ी, वही है जिसने अय्यदका बिनस्रिही, जिसने आपकी तायीद की अपने मदद के जरिए से, वबिल मोमिनीन, और मोमिनों के जरिए से। अब देखें एक पॉसिबिलिटी, जो देखें ये है कुरान, ये है कुरान का जो दस्तूर जो हर हर हालत को इनका इनकम्पास करता है और हर हालत का सोल्यूशन दिखाता है। यानी जब अल्लाह ताला इजाजत दे रहे हैं कि अगर काफिर जो सो सुलह करना चाहते तो तुम उनके साथ सुलह कर लो और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अब एक अंदेशा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुफ्फार और मुशरिकीन सुलह तो कर रहे हैं लेकिन वो सिंसियर नहीं है सुलह करने में। दर हकीकत में हो सकता है वक्त लेना चाहते हैं, और जब सुलह करके थोड़ा सा वक्त ले लेंगे तो दोबारा तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, मुसलमानों को धोखा देंगे और मुसलमानों को दोबारा अटैक करेंगे। तो वो सिंसियर नहीं होंगे। हो सकता है वो सिर्फ दिखाने के खातिर या धोखा देने के खातिर सुलह की पेशकश कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी में हम क्या करें? इसके लिए भी अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, उसका सोल्यूशन बता दे रहे हैं। और मुसलमानों के ऊपर जो खदशा हो सकता था कि हो सकता है कुफ्फार हमको धोखा देने के लिए सुलह की पेशकश कर रहे हैं, हो सकता है वो हमको जो सो तो इसीलिए हम नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर अल्लाह ताला उस खदशे को दूर करते हुए और उसके बारे में जवाब देते हुए कह रहे हैं कि अगर वो तुमसे खयानत करने का कायल करना चाहते हैं तो जो सो आप फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपके लिए काफी है। और उसी ने तुम्हारी मदद की थी अपने जरिए से भी और मोमिनों के जरिए से भी। यानी अल्लाह ही है जिसने आप जब अकेले थे उस वक्त में आपकी मदद की, और जो सो उसने तुम्हारे मोमिनों को भी आप तुम्हारे साथ कर दिया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पे मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अगर वो सुलह करने के लिए तैयार होते हैं तो आप उनके दिलों के अंदर क्या है इसका आपको पता नहीं है, इस वजह से आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। उनके फेस वैल्यू के ऊपर जब वो सुलह के लिए तैयार हो रहे हैं तो सुलह कर लो। और अगर उनके दिलों में जो धोखा देना और खयानत करने की इरादा है तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी है। तो मतलब ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर भी जो सो अल्लाह ताला ये स्ट्रेस करना चाहता है कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो गैब का इल्म नहीं है, उनके दिलों में क्या इरादा है नहीं मालूम है, तो आप उनके फेस वैल्यू पे जब वो आगे बढ़ रहे हैं सुलह के लिए तो सुलह कर लीजिए। और जो सो अगर वो आपको डर लगता है कि वो खयानत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए काफी है। और वही अल्लाह जिसने आपकी मदद की थी
यानी याद रखिए कि आप तो तने तनहा थे, जब आप दीन की तबलीग करने के लिए उठे थे तो आप एक फर्द थे, तो अल्लाह ताला ने आपको आपके साथ जमात बनाया। फिर मक्के में जब तक आप 13 साल थे तो मुसलमान चंद थे और थोड़े से थे, लेकिन मुसलमानों पर तकलीफ हो रही थी, मुसीबतें हो रही थी और ज्यादा जुल्म ज्यादती हो रही थी। फिर जब अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया, आपने हिजरत किया, मदीने में आप आए, मदीने में आपका बेस बना, उसके बाद मुसलमानों ने जो आपके जो खास तौर पे अंसार जो है ना, मुसलमान जो मदीने के जो मुसलमान थे, अंसार के माने ही होते हैं मदद करने वाला, और वो मुसलमान जो अंसार जो मदीने के थे, उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और जो मुहाजिरीन जो मक्के से आए थे उनके साथ ऐसी बेहतरीन उनकी खिदमत की, उनके साथ ऐसा बेहतरीन मदद किया जिसको अल्लाह ताला ने तारीफ किया है। अगली आयत में भी उसके बारे में आ रही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार बल्कि आखिरी वक्त में भी कहा, ए लोगों, ए मुसलमानों, अंसार का ख्याल रखना, अंसार का ख्याल रखना, क्योंकि उन्हें हम उन लोगों ने हमारी उस वक्त में मदद की जब हम बिल्कुल कमजोर थे, हमारा मालो दौलत सब कुछ छिन गया था मक्के में, उस वक्त में जब हम तने तना आए थे तो मदीने के लोगों ने हमारी मदद की थी। इस वजह से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो अंसार के बारे में बड़ी फजीलत बयान की और उनकी तारीफ की है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगर आपको डर हो कि मुशरिकीन हो सकता है हमारे साथ खयानत करेंगे, तो आप उस डर को अपने दिल से निकाल दीजिए। अल्लाह आपके लिए काफ़ी है और वही अल्लाह ने आपकी मदद की थी अपने ज़ात के ज़रिए से भी, और मोमिनों को आपका हिफा आपका क्या कहते हैं, आपका माउन बनाकर, आपका जो सो दस्तो-बाज़ो बनाकर अल्लाह ताला ने आपकी मदद की है। तो वही अल्लाह आपकी अब भी मदद करेगा अगर ये खयानत करना चाहें तो। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, और उसने उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी उनके दिलों में। लौ अनफ़क़ता, अगर आप खर्च कर डालते, इन्फाक करते, खर्च करते, मा फिल अर्ज़ि जमीअन, जो कुछ है जमीन में सब कुछ, मा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम, आप उनके दिलों में उल्फत नहीं डाल पाते थे, आप उनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकते थे। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, अल्लफ़ बैनहुम, उल्फत डाल दिया, मोहब्बत डाल दिया उनके दिलों में। इन्नहु अजीजुन हकीम, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। देखिए अल्लाह ताला जो सब एग्जाम्पल भी देकर दिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाना चाह रहे हैं, वही बात जो खास तौर पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मक्के से हिजरत करके जब मदीना आए, तो मदीने के लोगों ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ओपन हैंड वेलकम किया और उनकी मदद की, उनकी तायद की, उनको साथ दिया, उसका अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं। और अल्लाह ताला जो सो बता रहे हैं कि जो सो क्या अल्लाह ताला ने कैसा एहसान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर, जो कि हिजरत करने से पहले बहुत परेशान थे, बहुत सताए जाते थे, और जब हिजरत करके आए तो मुसलमानों का हाल ये था कि उनका माल भी छीन लिया गया, उनकी औलाद को छीन लिया गया, उनके खानदानों में से कुछ लोग जो सो मक्के में रह गए, कुछ मदीने में वापस आ गए। कईयों का हाल ये था कि जो अपने जिस्म पे कपड़े थे उसके साथ आए, बल्कि एक सहाबी का जो वाकया है, जो पूरी इस्लाम की तारीख में एक बहुत अजीब वाकया, वो नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, जो गालिबन उनका नाम ज़हन में अभी नहीं आ रहा है। एक सहाबी थे जो बहुत रईस खानदान के थे, वो बल्कि दुनिया मक्के में शायद सबसे ज़्यादा रईस थे वो, और उनका जो लिबास जो है वो मुल्क शाम और मुल्क शाम से तैयार होकर आता है, और बहुत महंगे-महंगे लिबास पहनते हो, बहुत महँगी खुशबू इस्तेमाल करते हैं। यानी दुनिया के उस ज़माने के मक्के के रईसों में से उनका शुमार होता था। उनके बहरहाल वालिद साहब नहीं थे, तो उनके चचा वगैरह खानदान में उनके थे। उसके बाद जो सो जब वो इस्लाम ले आए और मक्का जब हिजरत करना चाह रहे थे, तो उस वक़्त में उनके जो सो रिश्तेदार जो है, और ख़ास तौर पे जो उनका चचा वगैरह है, उन लोग उनके सामने खड़े हो गए और कहा कि ये जो कुछ माल और दौलत है, ये सब कुछ आपने मक्के में कमाया है, तो आप अगर इस्लाम लेकर आकर और मदीना जाना चाहते हैं, तो आपको जो सो ये सब माल ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब ये है कि अगर आप मक्का जाना चाहते हैं, आप जाइए, ये सारा का सारा माल और दौलत आपको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। तो वो उसके लिए राज़ी हो गए। यहाँ तक कि फिर उनके जिस्म पे जो लिबास था, वो लिबास भी बहुत आला और बहुत माल कीमती था। तो उन लोगों ने, ज़ालिमों ने कहा कि ये जो जिस्म पर लिबास है, ये भी मक्के का है, इसको भी तुमको उतारना पड़ेगा। देखें कैसी-कैसी कुर्बानियाँ और किस-किस तरीके से मुसलमानों ने इम्तिहानात को दिया है, ये तारीख़ी वाक़यात को जब हम पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा।
तो बहरहाल वो साहबी का वाक़या ज़हन मेरे में नाम नहीं आ रहा है। तो बहरहाल जब उन उन लोगों ने डिमांड किया कि आपके जिस्म के ऊपर जो लिबास है ये भी आपको उतारना पड़ेगा, तो उनके पास जब और कोई रास्ता नहीं था तो मजबूरन उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर जो लिबास था उसको भी निकाल दिया। ये नहीं कहा कि नहीं मैं ये तो नहीं निकाल सकता लिहाज़ा मैं हिजरत नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे पास रुक जाऊँगा। उन्होंने जो सो मजबूरन जो सो अपने जिस्म पे जो लिबास था उसको भी उतार दिया और बिल्कुल बरहना हालत में बहरहाल जो कुछ उनके पास ये था उसी हालत में वो जो सो मक्के से निकलकर हिजरत करके मदीना पहुंचे। और जब मदीना पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वो तारीफ की, उनके ऊपर उनको इतनी दुआएं दिया कि ये है आपकी कुर्बानियां और ये है कि आपने दीन के खातिर अपना सारा का सारा माल और दौलत भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि जिस्म के ऊपर जो लिबास था कुफार और मुशरिकीन ने वो भी उतरवा लिया। तो ये ऐसी ऐसी कुर्बानियां देकर हमारे असलाफ ने सहाबा ने इस दीन को जिंदा किया, इस दीन को जो सो आगे बढ़ाया है। काश हमको वो चीजें याद आए और हम उनके वो सीरतों को पढ़कर वो हम जो सो अपनी जिंदगियों को ढाल सके। तो बहरहाल जब मुसलमान इस मुसीबत और इन तकलीफों से जब मक्का से छोड़कर मदीना आए तो मदीने के लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से नबी सरसम सहाबा का इस्तकबाल किया। और उसके भी बहरहाल बातें तो बहुत है लेकिन यकीनन इसमें ऐसी ऐसी इबरतनाक और ऐसी चीजें हैं जिसको सुनने के बाद हम जो सो वाकई हमको पता चलता कि ये हमारा दीन है, ये हमारे असलाफ है जिन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दिया था, ऐसी ऐसी मिसालें कायम की थी। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक तो एहसास दिला दिया कि उन मोमिनों और मोमिनों मुसलमानों के साथ आपके हमने उनके उनको दस्तो बाजू बना दिया आपका और उनके साथ हमने मदद की। और एक जो अल्लाह का एहसान हुआ वो ये था कि मुसलमानों के दरमियान में जो अल्लाह ने एहसान वो किया उसको भी अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में उल्फत डाल दी। उल्फत क्या है? मोहब्बत, प्यार मोहब्बत जो होती है, अटैचमेंट, जो क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे के लिए जान यानी मर मिटने की जो एक ख्वाहिश होती है और वो जज्बा होता है उसको उल्फत कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इस उल्फत को डाला है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जो कुछ दुनिया में है जमीन में यानी जमीन भर के जो कुछ माल और दौलत है ये सब कुछ आपके इख्तियार में होता और आप उनकी उस तमाम माल को खर्च कर डालते इस गरज से कि मुसलमानों के दरमियान में उल्फत डाले, मोहब्बत डाले, प्यार और मोहब्बत डाले, आप उनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाल पाते थे। यानी अल्लाह से बढ़कर सच्चा कोई नहीं है। और अल्लाह ताला दो टोक अल्फाज में कह दे रहा है, मा अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अगर पूरा का पूरा माल और दौलत जो कुछ दुनिया में है ये सारी चीजें खर्च कर डालते और मोमिनों के दरमियान में मोहब्बत डालना चाहते, उनके दिल में उल्फत डालना चाहते, आप ये काम नहीं कर पाते। मतलब ये है कि दुनिया का माल और दौलत आप खर्च कर कर उनके दरमियान में मोहब्बत डालने की कोशिश करते तो ये नामुमकिन नहीं था। ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इनाम है, अल्लाह का एहसान है जो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में उल्फत डाल दी, उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा एहसान किया मोमिनों के ऊपर। बल्कि इसको अल्लाह ताला ने कई जगहों पर दूसरे अंदाज में जिक्र किया कि ए लोगों याद करो उस दिन को जब कि तुम जहन्नम के किनारे पर खड़े हो गए थे, किनारे यानी जहन्नम के किनारे तक आ गए थे। अल्लाह ताला ने तुमको उसमें से निकाल बाहर किया और तुम्हारे दिलों में जो सो मोहब्बत और उल्फत डाल दिया। मतलब क्या है कि तुम एक दूसरे के जब इस्लाम से पहले एक दूसरे में के तुम जो सो जान के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन जब इस्लाम आया और खास तौर पे मदीने के जो अंसार जो है ना, इनके आपस में जो सो खानदानी लड़ाइयां चला करती थी बाप दादा से, कई कई पुश्तों में उनकी जंगें चला करती थी। कोई इंसान मर रहा होता तो अपनी औलाद को जो सो वसीयत करके जाता कि फला कबीले से फला खानदान से हमारी दुश्मनी है, तुम उनको मौका मिले तो उनको कत्ल करना, उनको मार देना। तो इस तरीके के जब जंग और इनके आपस में दुश्मनियां हुआ करती थी, लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम के जरिए से अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल दी, ऐसी उल्फत डाली जो कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप दुनिया भर का माल भी खर्च कर देते तो उनके दिलों में उस तरीके की मोहब्बत नहीं डाल पाते थे। लेकिन ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल दी। और क्या है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में उल्फत डाल दी। इन्नहु अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। और ये उल्फत और मोहब्बत के एक तो आपको मैं मिसालें बयान करता हूँ कि कैसी मोहब्बत और कैसी उल्फत उनके दिलों में डाल दी। और उससे पहले सिनारियो क्या था, इस्लाम से पहले मदीने के जो मुसलमान जो अंसार जो मुसलमान हुए उससे पहले उनके आपस में जैसे मैंने कहा ना कि दुश्मनियां चली आती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर
दुश्मनियां चली आती थी, आपस में एक कबीला दूसरे कबीले का दुश्मन, और इनके बीच में मार धाड़ इस तरीके से चला करती थी। लेकिन जब इस्लाम आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आ गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए तो सबसे पहला जो काम आपने किया, अंसार और जो सो मुहाजिरिन, मुहाजिर उनको कहते हैं जो हिजरत करके मक्के से जो आए, उनको मुहाजिर कहा जाता। तो मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी बनाया। मतलब क्या है कि जो मक्के से जो लोग आए थे, मिसाल के तौर पे एक मक्के का मुहाजिर, तो एक मदीने के एक अंसार साहबी, दोनों को कहा कि तुम दोनों आपस में भाई हो, और इसी तरीके से यानी एक दूसरे को कहा कि फला फला का भाई है, फला फला का भाई है। इस तरीके से दोनों के अंसार और मुहाजिरीन में भाईचारगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डाला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली उनको कैसे कनेक्ट किया देखें। तो उसकी मिसाल क्या हुई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक अंसारी को एक एक मुहाजिर के साथ कहते कि तुम उसके भाई हो, तो वो अंसारी साथी जो सो अपने मुहाजिर भाई का हाथ पकड़ते और उनको अपने घर ले जाते, और ले जाकर क्या करते, अगर उनके घर में 2 घर है तो कहते कि ये घर तुम्हारा है, एक घर है तो कहते कि ये आधा घर तुम्हारा है, ये आधा घर मेरा है। और उनके पास अगर जो तिजारत होती तो तिजारत में कहते कि आधी आधी तिजारत तुम्हारी है, या आधी तिजारत मेरी है। उनके खेती और बागात वगैरह होते तो उसको भी आधी आधी करते। और यहाँ तक कि हद की भी हद ये हो गई है, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती जो हद इस्लाम में जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि उनके दिलों में हमने उल्फत डाली, उसकी मिसाल ये थी कि अगर एक, क्योंकि अक्सर अंसार मुहाजिरीन जो आए थे ना, उनके बीवी बच्चे जो सो कईयों के जो सो मक्के में रह चुके थे, तो वो लोग जो सो अकेले आ गए। तो उस वक्त में एक अंसारी सहाबी जो सो क्या करे, उनके पास 2 बीवियां थी, तो उन्होंने जो सो अपने जो मुहाजिर भाई जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भाई बनाया, उनको अपने घर ले गए और कहा कि मेरे भाई, मेरे पास 2 बीवियां हैं, ये 2 मेरी बीवियां हैं, तुम इनको देख लो, इनमें से जो तुमको पसंद आ जाए उसके बारे में मुझे बता देना, मैं उसको तलाक दे दूंगा, और तुम उसकी इद्दत पूरी होने के बाद तुम उससे निकाह कर लेना। आज बताएं कि कौन सा दीन होगा, इसीलिए अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया भर का माल भी खर्च करते तो आप उनके दिलों में उल्फत नहीं डाल पाते थे, लेकिन ये अल्लाह की एहसान है, अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने तुम्हारे उनके दिलों में और तुम्हारे दिलों में ऐसी उल्फत डाली। कैसी उल्फत, जिसकी मिसाल मैंने अभी बयान किया कि उसने अपने एक बीवी को तक तलाक देकर उनके लिए इजाजत देकर उनको ये करना चाह रहे कि तुम शादी कर लो उससे, यहाँ तक कि अपने माल में से आधा आधा कर लिया, कारोबार में से आधा आधा कर लिया। इस तरीके से उन लोगों ने जो सो अपनी मोहब्बत का मुहाजिरीन के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, और उसी तरीके से ऐसे कितने ही वाक़यात हैं। और एक वाक़या मैं आपको बयान करूँ, जैसे कि जो सो खुद कुरान में अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र किया। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मेहमान आया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहरहाल कोई बाहर से आया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इन साहबी जो सब बाहर से आए हैं वो मेहमान हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में जो सो अगरचे के वो बात लंबी हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो वक़्त पे याद आ जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि मुनासिब है कि ज़रूरी है कि उसको बयान कर दिया जाए। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों में अपनी बीवियों के पास पूछने लगवाया कि घर में किसी के पास कोई खाने के लिए है, तो सब जगह से यही जवाब आया कि किसी के पास कोई खाने के लिए कुछ नहीं है। उस वक़्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो सहाबा के दरमियान में ऐलान करवाया और कहा, ए साहबियों, मेरा एक मेहमान है, कौन है जो आज मेरे मेहमान की मेहमान नवाज़ी करे? तो एक सहाबी हाथ उठाया और उन्होंने उठा और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एज़ाज़ मुझे दीजिए, मैं मेरे मेहमान आपके मेहमान को ले जाता हूँ और उनकी मेहमान नवाज़ी करता हूँ। तो बहरहाल उसको उनको लेके घर चले गए, और जब घर चले गए, घर में जाकर बीवी से पूछा, तो बीवी ने कहा कि भई ये क्या किया आपने? हमारे घर में तो सिर्फ इतना खाना बाकी है कि अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो हम भूखे रहना पड़ेगा, और अगर हम खाएंगे तो बच्चे भूखे रहेंगे। तो मैंने तो सोचा था कि हम भूखे रह जाएंगे और अपने बच्चों को खिला देंगे। तो आपस में बीवी और शौहर ने मशवरा किया कि बहरहाल अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तो मेहमान भेज दिया है, अब हमको किसी भी तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करनी है। तो बहरहाल आपस में देखें किस तरीके की ये मियाँ बीवी के मशवरे इन चीज़ों में होते हैं सहाबा के अंदर, और हमारे अंदर भी वैसे होना चाहिए। तो बहरहाल उन दोनों ने ये मशवरा किया कि भले बच्चों को तो हम जो सो पानी वगैरह पिला के सुला देंगे, और रही बात कि खाना एक इंसान खाने को उतना ही है, 2 भी नहीं खा सकते। तो अगर वो सहाबी अगर मेहमान के साथ बैठ के खाना चाहेंगे तो दोनों का पेट नहीं भरेगा। तो बहरहाल सहाबी ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ कि जब हम दस्तरखान लग जाएगा तो फौरन तुम जो सो चिराग को बुझा देना, चिराग को गुल कर देना, ताकि जो सो मैं खाना खाने की एक्टिंग करते रहूंगा, मैं ये ऐसे कोशिश करूंगा, ऐसा दिखाऊंगा जैसे कि मैं भी खा रहा हूँ, और हमारा मेहमान जो है वो पेट भर के खा ले, ताकि जो सो हम उसको कम ना हो। तो बहरहाल उन लोगों ने प्लानिंग की, और उसी प्लानिंग के मुताबिक
अमल किया और मेहमान को जो सो पूरी तरीके से उसको पेट भर के खिला दिया। और वो रात का वक्त था, मेहमान चला गया। जब फजर की नमाज हुई, फजर के नमाज के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आयतें पढ़कर बता दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुरान की आयतें नाजिल किया था उसको पढ़ के सुना दिया और बहरहाल उनकी तारीफ की। तो अल्लाह ताला ने उस सहाबी का जो सो तारीफ किया कुरान की उन आयतों में कि मुसलमानों में से कुछ ऐसे हैं जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। यानी वहां पर वो अपने बच्चों की भूख को उन लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, खुद अपनी भूख को बर्दाश्त कर लिया और अपने मेहमान को जो सो उन लोगों ने खिला दिया। तो अल्लाह ताला ने अर्श से जो सो रहती दुनिया तक कुरान के अंदर वो आयतों को नाजिल कर दिया और उनकी तारीफ बयान कर दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मुबारक हो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में जो सो इस तरीके से तारीफ के कलिमात बयान किए। तो ये है मुसलमानों का जज्बा, ये है मुसलमानों के अहकामात और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और आपस में जो उनकी भाईचारगी और मोहब्बतें हो गई थी, उसकी भी मैंने एक मिसाल दी। अगरचे कि ऐसे बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं। तो बहरहाल बेसिक पॉइंट जो कंक्लूजन की ये है, अल्लाह ताला ने का ये एहसान हुआ जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर एहसान जितला रहे हैं और कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी दुनिया भर का माल दौलत अगर खर्च कर देते, मोमिनों के दरमियान में ऐसा ऐसा मोहब्बत और उल्फत नहीं पैदा कर सकते थे। ये तो अल्लाह का एहसान है जो कि अल्लाह ताला ने इनके दरमियान में ऐसी उल्फत पैदा कर दी। और जो उल्फत के एग्जाम्पल्स और बेहिसाब तादाद ऐसी मिसालें मौजूद हैं। और इसी का चलते चलते वन सेकेंड जो सो मेरे अभी जहन में बात आ रही है, ये तो अल्लाह ताला ने इज्तिमाई तौर पर उस वक्त के मुसलमानों का जिक्र किया। और आज भी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो उल्फतें जो होती है ना, जो अल्लाह के हाथ में ही है और यकीनन वो अल्लाह का जो एहसान होता है, हम में से हर इंडिविजुअल शायद उसको नोटिस किया होगा या नोटिस करेगा। मिसाल के तौर पे मेरा मतलब ये है कि जो इंसान शादी ब्याह में जो मियाँ बीवी जो निकाह के बंधन में जो बन जाते हैं, हम में से कितने ही लोगों ने खुद अपनी अपनी जिंदगी में जब हम देखेंगे तो पता चलेगा, जो हमारी बीवी है, जो हमारा शौहर है, एक वक्त था कि वो हमारे लिए अजनबी थे, हम कभी उनको पहचानते भी नहीं थे। वो पता नहीं कौन से शहर में थे या कहाँ थे, क्या थे, हम उनके लिए बिल्कुल अजनबी, वो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी थे। और दुनिया में हम जो सब क्या किसी कोई इंसान अपने अजनबी, यानी दुनिया में बहुत सारे मुसलमान होते हैं, रास्ता चलते सौओं को हम देख रहे होते हैं, सौओं को आमने सामने होता है, लेकिन क्या उनके लिए इंसान अपनी जान को, माल को कुर्बान करने के लिए तैयार होता है? नहीं तैयार होता। लेकिन क्या चीज है वो जो कि जब अल्लाह ताला के नाम लेकर, जैसे कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि तुमने जो सो अल्लाह का नाम लेकर एक गैर महरम को जो कि हराम था, जिसका शर्म का, उसको तुमने अपने ऊपर हलाल कर लिया। यानी निकाह के बंधन में जब इंसान बन जाता है तो अल्लाह का नाम लेकर, तो अल्लाह ताला जो सो कह रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि उसके अंदर भी जो उल्फत, जो अल्लाह ताला जो मियाँ बीवी के अंदर जो उल्फत पैदा होती है, वो भी अल्लाह के तरफ से होती है। यानी ये एक इज्तिमाई तौर पर सारे पब्लिक में जो अल्लाह ताला ने किया वो अंसार और मुहाजिरीन के बीच में था, और इंडिविजुअल तौर पर भी जो मियाँ बीवी के दरमियान में जो उल्फत होती है, वो हर कोई तकरीबन जो सो उसको फेस करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। इल्ला ये कुछ लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली जिनकी जिंदगी में तलखियाँ होती है, तो वो शायद उसके अपोजिट होगा। वो तो बहरहाल अल्लाह ताला उन पर भी रहम करे, उनके दिलों में भी मोहब्बतें डाल दे। लेकिन जो आम तौर पर जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि एक अजनबी, बिल्कुल गैर महरम, कोई जिसे कोई पता नहीं है, उसके साथ जब आपका निकाह होता है, निकाह होने के बाद ऐसी भी जरूरत नहीं है कि 25-25 साल 20-20 सालों से हम शादियों में शादी के एक साथ जी रहे हैं, तब जाके मोहब्बत बढ़ी, तब जाके एक दूसरे के लिए जो सो मोहब्बत में हम जान एक दूसरे के लिए जो सो अपना सब कुछ कुर्बान करने के तैयार। बल्कि ऐसे कितने ही वाकयात जो सो हम देख रहे होते हैं कि आए दिनों अखबारों में पढ़ते हैं, अभी निकाह हुआ, अभी शादी हुई, कोई ऐसा एक्सीडेंट है, कोई सी हालत होगी जिसमें बीवी ने शोहर के लिए या शोहर ने बीवी के लिए अपनी जान दे दी और उसकी जान बचा ली। तो ऐसे कितने ही वाकयात पेश आते रहते। तो पता क्या चला, जब अल्लाह का नियम नाम लेकर जब वो निकाह के बंधन में बंध गए, तो अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में ऐसी उल्फत डाल दी जाती, ऐसी मोहब्बत डाल दी जाती कि वो एक दूसरे के लिए अपना माल, अपना जान, अपनी खुशी और अपना आराम सब कुछ खर्च कर देते, सब कुछ कुर्बान कर देते। कितने ही मियाँ बीवी में देखा जाता है कि अगर शोहर जो सब बीमार है तो बीवी सालों साल उसकी खिदमत कर रही है, उसी तरीके से कहीं पर बीवी बीमार है, वो शोहर बेचारा उसकी सालों साल खिदमत कर रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? ये पैसे के जरिए से ये मोहब्बत और ये चीजें, ये सर्विसेज नहीं खरीदी जा सकती। चाहे दुनिया का सारा पैसा लौट किसी को लगा दिया जाए, किसी को हायर कर लें, तो वो मोहब्बत और वो प्यार और जो सो वो खिदमतें नहीं होती हैं जो कि ये अल्लाह के तरफ से होती है। फिर उसी तरीके से माँ बाप की और औलाद के अंदर जो मोहब्बत है, ये भी अल्लाह के तरफ से इनाम है। यहाँ तक कि जो सो
एक जानवर दूसरे जानवर उसकी औलाद से मोहब्बत करता है। तो बहरहाल ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी अल्लाह की तरफ की इनाम है, जो कि अल्लाह लोगों के दिलों में डालता है, ये अल्लाह का एहसान है, जो कि अल्लाह ताला यहाँ पर बहरहाल मुसलमानों के अंदर जो उल्फत डाली उसके ज़िक्र किया था और उसी के ज़िम्न में कुछ बातें निकल चुकी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुकल्लाहु, काफ़ी है अल्लाह आपके लिए, व मनित्तबाअका, और उनके लिए भी जो आपकी पैरवी करते हैं, आपके साथ है, मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से। यानी अब अल्लाह ताला और आगे बढ़कर मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास दिला रहे हैं और ये हिम्मत दिला रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी है, और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उन तमाम मोमिनों के लिए जो आपके साथ है। तो इसमें नबी के लिए भी खुशखबरी है, उस ज़माने के मुसलमानों के लिए भी खुशखबरी है, और आज के हम जो क्या कहते हैं कि कमज़ोर और नातवान और बिल्कुल नाम नेहात मुसलमान हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है, और रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि हस्बुकल्लाह, अल्लाह तेरे लिए काफ़ी है, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। इसी तरीके से जब मुसलमानों के ऊपर जब खासतौर पे जंग उहद का गालिबन वक्त है कि जब मुसलमानों के खिलाफ जब जंग दुश्मन जो लश्कर कशी कर रहे थे, तो उनका कोई जासूस वगैरह ने आकर मुसलमानों को डराने की कोशिश किया, कहा कि लोग तुम्हारे लिए जमा हो रहे हैं और सब बंदियां कर रहे हैं, तुम डर जाओ। उस वक्त में अल्लाह ताला ने उसको भी कुरान में नकल कर दिया। मोमिनों का हुआ क्या, लोग बजाय इसके कि मुसलमान डर जाते और उनके दिल में खौफ हो जाता, उनका ईमान और बढ़ गया, और उन्होंने कहा कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमारे लिए काफी और वो बेहतरीन कारसाज है। तो ये है, अल्लाह ताला उस वक्त में भी था, आज भी है, रहती दुनिया तक भी है। फर्क ये है कि हमारे अंदर वो ईमान नहीं है, हमारे ईमान के अंदर वो कमी है। तो आज भी अगर हम जो सब बेबस महसूस होते हैं, अगर हमारे पास जो सब कोई बीमार है, या हमारे पास कोई फाइनेंशियल तंगी है, या हमारा दुश्मन हमको अतराफ से घेरा हुआ है और हमको ये फिक्र होती है, ये तंगी महसूस होती है, हम बेबस और कमजोर नजर आते हैं, तो हमको बिल्कुल बेबस होने की जरूरत नहीं है, हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो कहा कि हस्बी अल्लाह, इसको जैसे याद करते रहें कि हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, हस्बुन अल्लाह, अल्लाह ताला हम तमाम के लिए काफी है। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं हस्बुका, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए, हस्बुक अल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए काफी है। तो ये जब इंसान जब मजबूर होता है, परेशान होता है, बेबस हो जाता है, सारी जगहों से उसके ऊपर उसकी हिम्मतें टूट जाती हैं और जो सो रास्ते बंद नजर आते हैं, उस वक्त में कभी ये कलिमा पढ़ के तो देख लीजिए, फिर कैसी हिम्मत आ जाती है, कैसा हमारे लिए जो सो इत्मीनान आ जाता है। यानी जब इंसान डर रहा है, परेशान है, डूब रहा है, और उसको वो सारे उसके असबाब उसको खत्म होते नजर आ रहे हैं, अब उसको लगता है कि मेरी आंखों के सामने मैं डूब रहा हूँ और मैं खत्म हो रहा हूँ, उस वक्त में भी जब इंसान कहता है हस्बुनल्लाह, अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है, या हस्बी अल्लाह, अल्लाह ताला मेरे लिए काफी है, तो उस वक्त में यकीनन इंसान को इत्मीनान आ जाता है। वो क्या है कि अगर मैं डूब रहा हूँ और अगर मैं डूब भी जाऊंगा तो अल्लाह मेरे लिए काफी, यानी अगर अल्लाह ताला चाहता है कि मैं डूबना है तो मैं डूब जाऊंगा और उसमें मेरे लिए खैर है, और अगर अल्लाह ताला चाहता है कि मैं बच जाऊं तो इस आखिरी जो मैं अब डूब रहा हूं लेकिन इसमें से भी अल्लाह ताला मुझको निकाल बाहर करेगा। तो ये है वो जज्बा, और वो आखिरी जो कहते हैं ना कि लास्ट होप, सारी जब उम्मीदें खत्म हो जाती तो यहाँ से वो जो जो उम्मीद शुरू होती है, वो ऐसी उम्मीद है जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर हमारा ईमान हो, पक्का ईमान हो, और हम सही तरीके से उस पर जम जाएं, और जब कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, जब कभी भी कोई तकलीफ आ जाए, तो फौरन अपने दिल को यही दिलासा दे दें, हस्बुनल्लाह, अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, हस्बी अल्लाह, अल्लाह ताला मेरे लिए काफी है। तो बहरहाल इस तरीके के कलिमात इंसान कह दें और अपने आप को जो सो इत्मीनान से फिर अल्लाह पर भरोसे पर छोड़ दें कि जो कुछ मेरे साथ होने वाला है वो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मेरे लिए काफी है, और जो कुछ अल्लाह फैसला करेगा वो यकीनन मेरे हक में खैर खैर का और भलाई का होगा। चाहे उसमें हमको लग रहा हो कि मेरी बर्बादी हो रही है, मेरा माल जा रहा है, मेरी जान जा रही है, मेरे रिश्तेदार खत्म हो रहे हैं, उसमें भी हमारे लिए खैर होगा। और जब अल्लाह के ऊपर हम भरोसा करेंगे, तवक्कुल करेंगे, उसके बाद जो कुछ भी नुकसान होगा, फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, माशा फ़ाल अल्लाहु माशा। बहरहाल वो और एक कलिमा है जैसे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखलाया है कि जो जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, और जो हुआ वो बहुत बेहतर हुआ, सबसे अच्छा। चाहे वो हमको लग रहा हो कि भाई इसमें मेरा नुकसान हुआ है, मेरा खसारा हुआ है, कोई इंसान बोलेगा भाई
मेरा तो खसारा हुआ है, लेकिन हमारा इसमें यकीन है कि जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, और जो कुछ हुआ वो मेरे लिए बेहतर है। तो चाहे मेरा नुकसान हुआ है, चाहे मेरी रिश्तेदार की कोई अपनों की जान गई है, किसी का नुकसान हो गया, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उस पर हमारा ये ईमान है, हमारा ये यकीन है कि जो कुछ हुआ है वो अल्लाह की मर्जी से हुआ है, और जो हुआ है वो मेरे हक में बेहतर और खैर है। उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती थी। और क्यों? कि अगर उससे बेहतर कोई चीज़ हो सकती थी, तो यकीनन अल्लाह ताला वो मेरे मुकद्दर में करता था। तो यहाँ पर हमारे ईमान का इम्तिहान है कि जो अल्लाह ने मेरे लिए मुकद्दर किया, जो मेरे साथ मामला हुआ, होने से पहले का मामला अलग है। होने से पहले आप तदबीरें करेंगे, कोशिशें करेंगे, एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा लेंगे, सारे असबाब को इख्तियार करेंगे कि मेरे हक में खैर के फैसले हो। कोई बीमार है, कोई आप आपकी आँखों के सामने मर रहा है, तो आप पूरी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा देंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ये करेंगे, कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसको जो ज़रिया इख्तियार कर सकते हैं, सब कुछ इख्तियार करेंगे। उसके बाद अगर वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया उस बीमारी में, अब हम कहेंगे कि जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, और जो हुआ वो सबसे बेहतर था। इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी। उसका जीना अगर बेहतर होता तो अल्लाह ताला यकीनन उसको ज़िंदा रखता। उसकी मौत ही उसके लिए बेहतर थी, हमारे सबके लिए बेहतर थी, लिहाज़ा अल्लाह ने उसको मार दिया, या अल्लाह ने उसको मौत दे दी। तो बहरहाल इस तरीके की जब हमारी कैफियत होगी, हमारी सोच होगी, और ये कहें, कहना तो बहुत आसान है, यकीनन कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीती है उसको ही पता चलता है। तो इस तरीके से, इस तरीके की बातों से सबसे पहले मैं अपने आप को और हम तमाम को एक दूसरे को नसीहत करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला कभी हमारे ऊपर ऐसे हालात को ना लाए जिसमें कि हमारा इम्तिहान हो, हमारे लिए आजमाइश हो, लेकिन कभी आ गए तो फिर हमको ऐसे ही साबित कदमी के साथ, ऐसे ही अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, बिना वाविला करे के चीखे चिल्लाए कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन हम अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो इस तरीके से जब हम अपने ईमान को रखेंगे और अकीदे को रखेंगे, तो होगा क्या, जो नुकसान हुआ है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम अज कम उस पे वावेला करके, चीख के चिल्ला कर जो हम गुनाह करने वाले थे उससे बच जाएंगे, और अल्लाह की मर्जी पर जब हम राजी होंगे तो यकीनन अल्लाह ताला उसमें भी हमको अजर देगा। यहीं पर हम इत्तेफा करते हैं, बात लंबी हो गई थी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।